Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to complete the first part of the stories about flying. So we have done the black aeroplane, the second part first. But now let's do the first part also because it's important for the exams. So let's start with it. So here you can see his first flight. This is written by Liam O'Flaherty. So, do you know anything about? Let's revise a little bit about the title and all. Two stories about flying. So, this is something. This story is something about flying. We can relate flying to achieving our dreams. We can relate flight to fulfill, to achieve, to have what we want to have since we were too young, and we were always what we have always thought. So let's see that what it is all about. Two stories about flying. His first flight. So the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो यहाँ पे द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, अ नैरो, व्हाट इज अ लेज? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिफ. तो एक क्लिफ, बच्चों, एक क्लिफ जो होती है वो पहाड़ का आप ऐसा पोर्शन समझ सकते हैं जहाँ से आगे आप देखते हैं तो समुद्र होता है. तो वो यहाँ पे यही बता रहा है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेज. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन दैट नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ or a cliff. His two brother and his sister had already flown away the day before. तो उसके जो दो बहन भाई, ब्रदर और सिस्टर, वो पहले दिन ही उड़ चुके थे. ठीक है, आगे देखते हैं. He had been afraid to fly with them. वो डर रहा था उड़ने से. क्यों डर रहा होगा? अगर मैं आपको कहूँ कि आप उड़ के दिखाइए तो आप क्या कहेंगे? सर पागल है क्या, आप मजाक कर रहे हैं हमसे, हम उड़ेंगे तो हम मर जाएंगे. तो हम सबको एक डर होता है कि हम मर ना जाएं. इस वजह से मैं नीचे गिर जाऊं जिस वजह से मेरी डेथ हो जाए. तो ठीक है. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So he had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the bridge of the ledge. तो हम देखते हैं जब हमारे को आपने कभी एरोप्लेन में अगर फ्लाई करा हो तो आप देखते हो कि एरोप्लेन रनवे से टेक अवे करता है. तो उस समय क्या होता है, जब हम रनवे पे प्लेन थोड़ा सा रन करता है, उसके बाद द प्लेन टेक्स अ फ्लाइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो फ्लाइट लेने से पहले प्लेन रनवे पे है, वो भागता है एक उड़ान के लिए, एक स्पीड के लिए वो भागता है. तो यहाँ पे वैसे ही वो यंग सीगल भागने की कोशिश कर रहा है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यहाँ पे वो जो है उसने एक लिटिल रन लिया है to the brink of the edge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो अब वो डर रहा है. The great expanse of sea stretched down beneath. तो नीचे जो है समुद्र है और वो बहुत फैला हुआ है. द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. तो उसको लगा कि मैं छोटा सा सीगल, मैं बेचारा, मैं कहाँ इतने बड़े समुद्र को लांग पाऊँगा, मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं है, मेरे विंग्स में इतनी ताकत ही नहीं लगती मुझे. तो द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath. नीचे बहुत बड़ा समुद्र आगे तक दिख रहा था. एंड इट वॉज such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head. उसने अपना सर झुकाया and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वो कहता अब ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से, तो क्या करें, चलो. उसने नीचे सर झुकाया, वो वापस अपने होल में जाकर छुप गया और वहीं उसने रात गुजारी. Even when each of his brother and his little sister, उसकी छोटी बहन तक, whose wings were far shorter than his own, मतलब उसके विंग से भी छोटे उसकी बहन के विंग्स थे, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तो वो भागी, ब्रिंक तक भागी. उसके बाद उसने अपने विंग्स फैलाए और वो उड़ गई. तो
he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो बहुत चाहता है कि वो उड़े, वो बहुत ज़्यादा उसकी दिली इच्छा है अपने बहन भाइयों के साथ उड़ने की, बट वो करेज जोड़ नहीं पा रहा है वहाँ तक उड़ने की, वहाँ तक उनके पास तक जाने की. तो उसके बाद हम आगे देखते हैं. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. तो उसके फादर और मदर जो है वो उसके पास आते हैं, उड़ते हैं, उसको सुनाते हैं, उसको डांटते हैं, उसको डराते हैं कि हम तुम्हारे को कुछ खाना नहीं ला कर देंगे. जैसे अब हम छोटे होते हैं बच्चों, तो हमारे खाना जो है वो हम तो अर्न कर नहीं सकते थे, तो हमारे को हमारे पेरेंट्स ला कर देते थे खाना, हमारे को खिलाते भी थे पहले तक. तो उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे को प्लेट में ला के दे देते थे. लेकिन अब जो हम बड़े हो गए हैं तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्न करने की और थोड़े टाइम बाद अपनी फैमिली को फीड करने की और अपने मदर फादर को भी फीड करने की. तो इसी तरीके से उसको वो डांट रहे हैं कि उड़ो, अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हारे को खाना नहीं ला के देंगे हम. आज अगर हम ला देंगे तो कल को जब हम नहीं होंगे तो तुम खाना कैसे खाओगे, इसके लिए तो तुम्हारे को उड़ना ही पड़ेगा. तो थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट उसको अपनी लाइफ बहुत प्यारी थी बच्चों, बहुत 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 प्यारी थी उसको अपनी लाइफ. क्या हम सबको अपनी लाइफ प्यारी होती है? बिल्कुल होती है. तो हम क्या करें, घर में ही बैठे रहें, कुछ करें नहीं, कहीं जाए नहीं, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और चलता रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं. बट ऐसे नहीं हो सकता ना बच्चों, हमारे को घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा. तो दैट वॉज 24 आवर्स अगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. 24 घंटे बीत गए, उसके पास कोई भी नहीं आया था. सिंस देन नोबडी हैड कम. All day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. तो वो 24 घंटे तक. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister. वो देख रहा है अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को एक साथ उड़ते हुए. परफेक्टिंग, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको सिखा रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. हमारे पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स प्रोफेशनल हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं आप प्रोफेशनल बनो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको अपने कॉन्टैक्ट्स दे देंगे. हाँ, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं. तो सब जो चीज़ जो हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं वही हमारे को कहते हैं कि आप ये आगे बढ़ाओ, आप ये करो, हम आपको वही सिखा सकते हैं. ऑब्वियसली जो हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं वही हमारे को सिखा सकते हैं. तो परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. Skim the waves to move lightly just above the surface. ऊपर कैसे जाना है, to move lightly just above the surface. सी के ऊपर कैसे उड़ना है. And how to dive for fish. अब मेरे को एक बात बताओ, एक सीगल का खाना क्या है? फिश. तो फिश कहाँ, उनके पास उड़कर आ जाएगी अपने आप? वो तो आएगी. फिश को तो नीचे जाकर समुद्र से उठाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइव करनी पड़ेगी बच्चों, डाइव करनी पड़ेगी समुद्र के अंदर. तो अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स उनको क्या बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको डाइव करनी है उस फिश के लिए. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो उसने अपने बड़े भाई को देखा, वहाँ पे उसके बड़े भाई ने फ़िश पकड़ी है, तो पहली फ़िश पकड़ी है. सब लोग बहुत खुश हैं. Standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. तो उसके मम्मी पापा जो है वो साथ में उड़ रहे हैं, उसके बहन भाई भी उड़ रहे हैं, सब बहुत खुश हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग, वो बहुत प्राउड भी है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन. तो पूरी फिर जो है वो पूरी सुबह द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस. तो उसके पास आते हैं, उस प्लेट्यू पे आते हैं, उसको फिर सुनाते हैं कि तुम तो बहुत कॉवर्ड हो, तुम डरपोक हो, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की. द सन वॉज नाउ असेंडिंग, द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, द फेस द साउथ. तो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉर. तो सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सन आ रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके ऊपर आ गया है, दैट फेस द साउथ. ही फेल्ट द हीट
भाई जब सूरज आता है ऊपर तो गर्मी तो लगती ही है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. तो वो जो है वो he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. अब वो जो है वो नाटक कर रहा है सोने का कि वो उसकी तरफ देखें, बट उसके घर वाले उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. तो उसके फादर जो है वो अपने फेदर्स को जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे हैं उसके फादर. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. तो उसकी जो मदर है वो खड़ी है. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, थोड़ा सा ऊंचा खड़ी है. हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उनकी आगे का पोर्शन है वो आगे की तरफ है. हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. तो वो जो है फिश खा रही है. शी देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक. शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. तो उसने जो है अपने फीट के पास रखे हुए पीस ऑफ फिश को फाड़ा, फिर उसको खाया. द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे. अब वो पागल हो रहा है वो चीज़ देखकर. वो ये देख रहा है कि कैसे मैं पागल था ये खाने के लिए, इस तरीके से मेरे को खाना कितना पसंद है. स्क्रैपिंग इज ब्रीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अब जो है हाउ ही लव टू टेयर दैट फूड, स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अब वो जो है वहाँ पे अपनी चोंच रगड़ रहा है उसको थोड़ा शार्पन करने के लिए. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वो जो है अपनी आवाज़ में बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए खाना ला के दो, मैं भूखा हूँ. गो गॉला शी स्क्रीम दैट डेरिसिवली. तो इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड. जैसे हमारे घर वाले भी हम कुछ काम नहीं करते तो हमारे को बोलते हैं कि आप स्टूपिड हैं तो हम आपके लिए नहीं करेंगे, हमें डांट देते हैं. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. तो जो है वो कुछ सुन तो रहा नहीं है अब उसकी बात. फिर his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी मदर उसके पास आ रही है एक पीस ऑफ फिश लेके. देखते हैं वो देती है नहीं. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But वो ऊपर से ही उड़ रही है. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो जो उनकी फिश जो उनके बीक में है वो उसके पास आगे है, बहुत ज़्यादा पास है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. अब वो ये सोच रहा है कि वो आई क्यों नहीं मेरे को फिश देने. तो फिर जो है with a loud scream he fell. फिर वो यहाँ पे he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. वो फिर पागल हो रहा है भूख से. तो and his heart stood still. He could hear nothing. अब वो कुछ सुन नहीं पा रहा. And his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. And the wing fell high. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, against his. तो यहाँ पे हमने एक लाइन. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. तो अब जो है वो लाउड स्क्रीम के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. वो नीचे गिर गया, वो भागा और नीचे गिर गया. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. अब वो एक मॉन्स्टरस टेरर ने उसको सीज कर लिया, उसका हार्ट जो है वो स्टिल है. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. तो यहाँ पे अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स. विंग्स फैल गए हैं और फिर जो हवा है वो आ रही है उसके ब्रेस्ट फेदर्स को टच करके उसके स्टमक की तरफ से नीचे जा रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसके विंग्स एयर काट रहे हैं, फाइनली उड़ पा रहा है. तो wings cutting through the, he was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards.
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट वो डर नहीं रहा है. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. जब हम थोड़ा हवा में होते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे को एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है जरूर. तो वही थोड़ी सी उसको डिजी फीलिंग आ रही है. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 koala. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, leaping like a horse flying with one wing higher than the other. तो सब ऐसे उड़ रहे हैं खुशी में, एक खुशी का मोशन, एक रैंडम मोशन चल रहा है सबका. तो then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking singing. तो अब वो यहाँ पे क्या कहता है, then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो भूल गया है कि वो कभी उड़ नहीं पाता था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो अब वो अपने आप को कमांड कर रहा है, उड़ रहा है, नीचे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है. He was near the sea now, flying straight over it. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. तो अब he was near the sea now, sea के पास है, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो उसने अब देखा है green sea है, नीचे green sea है, बहुत बड़ा, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. तो जो green flooring, जो समुद्र का green portion दिख रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर सब वहाँ पे लैंड कर चुके हैं. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. तो वो अपनी उसने legs नीचे करी, नीचे sea में जाने के लिए. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed with fright. तो वो डर रहा है, वो चीख रहा है. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेंस्ट फ्लैपिंग हिज विंग्स. तो फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है कि फिर वो उड़ जाए. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. अब वो उसमें ज़्यादा जान बची नहीं थी क्योंकि वो भूख भी उसको बहुत लग रही थी. तो वो उड़ नहीं पा रहा था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. तो उसके जब फीट नीचे चले गए, एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. तो फिर जब उसकी बेली फाइनली सी के बेड को टच करती है, तब वो नीचे नहीं जाता. दिस इज प्योर साइंस बच्चों. जब लेग्स हैं, लेग्स नीचे चली गई, उसके बाद उनका जो बेली का पोर्शन होता है, जैसे ही वो टच करता है, वो उस पर फ्लोट कर सकते हैं. सीगल्स फ्लोट कर सकते हैं वाटर. एंड ही सैंक नो फर्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. तो उसकी फैमिली बहुत खुश है, चीख रहे हैं खुशी से, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. तो उसने डॉग फिश उसको ऑफर कर रहे हैं, डॉग फिश खाओ आप. तो दिस इज़ हाउ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. होप आपको समझ आया होगा बच्चों. बट स्टिल कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब करिए. चलिए आज के लिए इतना ही. आज की क्लास वाइंड अप करते हैं बच्चों. बाय बाय.